So we'll be starting with lesson 10, that is an overview of the intercorporate loans, investment guarantees and securities, and related parties transactions. So this chapter can be divided in two parts. One is the intercorporate loan, which is covered in section 186 and 187, and your related party transactions, which is given under section 188. So three sections and it's done. Okay. Now, very even interrelated related party transaction is a very important from exam point of view. You could confirm it can come in your exam. Okay, very high probability. Even your second part, that is your inter corporate loans, which is majorly covered in your section 186. So two sections you need to know by heart, 186 and 188. Let's see. First, we'll start out with intercorporate loans. Now, section 186, that is loans and investment by companies, has a total of 13 subsections. It has 13 subsections. We'll try to go in order and try in the end to memorize all of them. First is subsection 1. Section 186, subsection 1. It talks about a rule which is applicable for every single company. You tell me, a company can have how many subsidiaries? Company ABC Limited can have how many subsidiaries? Two. Two subsidiaries. So you think Reliance Industries has only two subsidiaries? Or they must be having hundreds of subsidiaries? Do you think there is more than two subsidiaries that they must be having? Yes. Yes. So actually they have many subsidiaries. देखने भी जाएंगे ना, and there is no limit in company law on the number of subsidiaries that you can have. ठीक है, खाली restriction किसके ऊपर है? Investment companies as your subsidiaries. So investment company एक हो गया as your subsidiary 1, investment company as your subsidiary 2. That is it. थर्ड वाला तुम सब्सिडरी नहीं बना सकते हो. यू कैन हैव इन्वेस्टमेंट कंपनी सब्सिडरी 3. ये बाय लॉ अलाउड नहीं है. ठीक है. सो देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ सब्सिडरीज, बट येस देयर इज अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज दैट यू कैन हैव एज योर सब्सिडरी. ठीक है. तो पहले समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती क्या है. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट companies. Now, investment companies, section 186 के explanation में दिया हुआ है. What do you mean by a investment company? First, we are trying to understand what is a investment company. Do you have any idea of investment companies? Mutual fund companies. Mutual fund. Any other thing? CIS. CIS. So any company whose principal business is to invest in securities, investment in securities is called as investment company. So पहला चीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? इनका मेन बिजनेस, इनका धंधा क्या होता है कि कंपनीज में इन्वेस्ट करना है. आज इन्वेस्ट किए, शेयर का भाव ऊपर गया, बेच दिया. We have seen who is the richest investor in the world? Warren Buffett. तो वॉरेन बफेट की भी तो कंपनी है, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है. वो वॉरेन बफेट की जो कंपनी है उसका नाम क्या है? Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway. So Berkshire Hathaway is an investment company. They identify companies which have a good potential and they invest in them. Even in India, we have Rakesh Jhunjhunwala, he can Motilal Oswal. They can all make companies whose business is to invest in the shares. When it goes up, then they can invest.
सो नाउ दे हैव सेड व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी, समझ में आया. सेकंड, दे आर सेइंग कि जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है तुम उसको सब्सिडरीज बना सकते हो, नो डाउट यू कैन हैव अ इन्वेस्टमेंट कंपनी एज अ सब्सिडरी, बट मैक्सिमम कितने? So maximum 2 layers of investment subsidiaries. So second, subsidiary, ये layer मतलब क्या? एक word use किया ये लोग ने, layer. layer यहाँ पे दिया maximum 2 layers of investment company. तो layer होता क्या है? layer is mentioned under section 2 subsection 87 which defines what is a subsidiary company. सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी के अंदर वो लोग ने बोला है कि लेयर मीन्स अ सब्सिडरी, मीन्स सब्सिडरी. सो इट इज नथिंग बट अ सिनोनिम, इट इज अ अनदर वर्ड फॉर अ सब्सिडरी का नाम क्या दे सकते हैं हम लोग? लेयर. अब बात आती है कि जब मैं एक कंपनी है, सोचो एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, कैन इट हैव 3 मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरीज? Yes. यस. 3 सॉफ्टवेयर कंपनीज हो सकता है, 100 सॉफ्टवेयर कंपनी रखो, 550 जो कंपनी रखना है रखो, बट जो इन्वेस्टमेंट कंपनी आ गया ना तो गवर्नमेंट तुम्हारा वो चालू कर देगी मीटर कि भाई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी हो गया, ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बस. अभी एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं बना सकते. क्या मैं एक और सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकता हूँ? Yes. यस. सो सब्सिडरीज कोई भी चलेगी बट इन्वेस्टमेंट कंपनी थर्ड नहीं चलेगी. अब ये क्या हुआ? दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंट्रोवर्सी ऑफ मेनी स्कैम्स इंक्लूडिंग सत्यम स्कैम. नाउ व्हाट हैपेंड इज दे ट्राई टू फाइंड आउट कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी से प्रॉब्लम इतना एलर्जी क्यों है गवर्नमेंट को, बाकी का सब अलाउ कर रहे हैं. अब क्या होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज रहती है अनलिमिटेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किया द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ डूइंग स्कैम्स. मॉडस ऑपरेंडी मतलब द मीडियम ऑफ डूइंग स्कैम्स, कि तुम इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाओ और उसके अंदर कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट्स करते रहो और एकदम कंफ्यूजिंग बना देने का कि ऑडिटर भी तुम्हारा स्कैम ढूंढ नहीं पाएगा. So they, from the backdrop of various scams, they have seen that investment companies have been made as a medium to do scams. ठीक है. तो government, they have said that we want to limit the number of investment subsidiaries that you can have. और फिर बाद में इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते कि अगर मैं सब्सिडरी बनाया तो मैं फ्रॉड के लिए बनाया होगा. बट दैट वाज द क्रिटिसिज्म फॉर दिस थिंग. बट लॉ टिल फर्दर अमेंडमेंट्स, दिस इज द लॉ. गवर्नमेंट ने बोला कि इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाते और फिर अपने ही ये पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिया इन्वेस्ट करके, अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मेरी भाई की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया. तो ये बहुत ही ऐसा लेयर बहुत बड़ा हो जाता है वो. क्लियर है इतना? सो अल्टीमेटली वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट मैक्सिमम 2 layers of investment subsidiaries, investment companies. Layer मतलब you can have maximum 2 subsidiaries which will be your investment company. अब इसका exception है. exception क्या है? Sir, Yeah. this layer is different than step down subsidiary. नहीं, it is the same. Even step down subsidiary is a subsidiary. So then what is a subsidiary of a subsidiary? That is a step down subsidiary. So I'll explain. Now you only tell me. Now there is, अभी तो 2 ये समझ गए, maximum 2 हो सकते हैं. अब इसको आगे थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करके बोलते हैं. तुम लोग ही मेरे को बताना. कंपनी ABC है, ठीक है, यहाँ पे
इसके पास में ये ऐसा नहीं बनाया ये लोग ने, लेट्स से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इज एवरीथिंग फाइन? इज देयर एनी इशू? No. नो। अब क्या होता है कि ये लोग, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी एक और सब्सिडरी बनाती है जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या ये चलेगा? No. नो, बिकॉज क्या हो रहा है, ये एक एबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक तो ये सब्सिडरी और एक ये सब्सिडरी, डोंट यू थिंक ये भी एक सब्सिडरी ही बन रही है? Yes. Yes, so this is not allowed by law because कोई भी कंपनी at any point of time cannot have more than 2 subsidiaries. लेयर भी क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि बात वही होती है, एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी हो गई इन्वेस्टमेंट कंपनी, अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की एक और सब्सिडरी हो गई इन्वेस्टमेंट कंपनी 2, ये फर्स्ट लेयर, लेयर 1 मतलब सब्सिडरी 1, ये अपनी सब्सिडरी 2, ये दोनों अलाउड है कि नहीं? Yes. यस। क्या ये थर्ड वाला अलाउड होगा? No. नहीं, बस तो यही बता रहे कि मैक्सिमम तुम 2 ही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी कंपनी उठा लो तुमको 3 सब्सिडरीज मिलेगी ही नहीं जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। क्लियर इतना? So in profile also if you see it's a layer, maximum 2 layers of investment companies. Further, दो permissions है कि ये टाइम पे चल जाएगा। When you acquire a foreign company which already has more than 2 investment subsidiaries, तो चल जाएगा। ये जो लॉ बना है 2 लेयर का, ये इंडिया का लॉ है कि अब्रॉड का लॉ है? India का। इंडिया का लॉ। तो अगर मैं यहाँ से कोई फॉरेन कंपनी को उठाऊं तो वो फॉरेन कंपनी के बहुत सारे सब्सिडरीज हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? No. No, so this is allowed. So let's say if Tata's has acquired a company abroad and that company has investment companies of more than 2, that is allowed. Acquisition of a foreign company which already has more than 2 layers of investment subsidiaries. समझ में आया? क्योंकि ये तो कुछ हमने तो कुछ किया नहीं है, वो टारगेट कंपनी के लेयर्स है और वो फॉरेन कंपनी में अलाउड है। और इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ, ये अगर फ्यूचर में कुछ लॉ आया और बोल रहे कि आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाना है तो चल जाएगा। सो ओनली इन दीज 2 केसेस यू कैन हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, अदरवाइज यू कैन नॉट। यहाँ तक समझ में आया? अभी टॉपिक का नाम क्या है? लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। कहीं पे भी लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट का बात देखा तुमने? नहीं। नहीं, ये एक्चुअली चालू होगा सबसेक्शन 2 से। ओके, सो दिस इज द लिमिट or the thresholds that you have given. Mark it as super important. So 186 subsection 1 talks about layers of investment companies. Second, ये वाला एक्चुअली बात करता है अबाउट लोन, गारंटी और इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, विच सबसेक्शन यू नीड टू नो अलोंग विद द लिमिट्स। तुम मुझे बताओ, क्या मैं अनलिमिटेड लोन्स किसको दे दूं क्या? No. तो हर कंपनी लॉ में कुछ तो लिमिट होना चाहिए कि भाई आप इससे ज़्यादा लिमिट मत, इतने इससे ज़्यादा पैसा मत दो, इससे ज़्यादा लोन्स मत दो। तो लिमिट क्या है वो? हाउ मच लोन्स कैन यू गिव? तो यहाँ पे लिखा है, नो कंपनी शैल गिव एनी लोन्स और प्रोवाइड गारंटी, किसी की भी गारंटी नहीं देने का, किसी को भी पैसा नहीं देने का, किसके भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी दूसरे एंटिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने का। एक्सीडिंग 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, विच एवर इज मोर। मतलब मैं यहाँ से एक कैलकुलेशंस करूँगा ये दोनों का, इसमें से सोचो कैलकुलेशन करके आया 20 करोड़ और इसमें कैलकुलेशन करके आया 30 करोड़,
So what is the maximum amount of loan guarantee or security I can give to a body corporate? 30 crores. 30 करोड़. तो मतलब मैं कंपनी का पेड अप कैपिटल लूंगा, फ्री रिजर्व्स लूंगा. अभी कभी कभार वो लोग बोलते हैं व्हाट आर फ्री रिजर्व्स, तो हम लोग देखेंगे फ्री रिजर्व्स का डेफिनेशन, पेड अप कैपिटल का डेफिनेशन और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब लेके ऐड करने का उसका 60% में एक फिगर आएगा, और फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम लूंगा उसका 100% से एक फिगर आएगा. फिर ये दोनों का जो भी हायर नंबर है, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी आई कैन गिव टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. मेरे को बोलो ये मेरा इनकमिंग है कि आउटगोइंग है? इट इज अ इनफ्लो और आउटफ्लो? Outflow. तो ये आउटफ्लो के ऊपर लिमिट रखा हुआ है, ठीक है, कि इससे ज्यादा तुम पैसा मत निकालो. कोई बोलेगा भाई मेरा पैसा है, शेयर होल्डर्स बोलेंगे हमारा पैसा है, कोई हमको क्यों रोकेगा. सो द नेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है, अगर मैं ये लिमिट से ज़्यादा देना चाहता हूँ, सोचो मैं किसी को 35 करोड़ देना चाहता हूँ, तो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है चलो अगर आपको देना है तो आप करो, बट आप एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन ले लो. If I exceed the limits given under subsection 2, then I have to take a special resolution. Don't you think it is a fair provision given कि भाई अगर लोन्स ये लिमिट से ज़्यादा देना है, मतलब कुछ बड़ा लोन दे रहे हो, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ बड़ी गारंटी दे रहे हो किसके लिए, तो तुम्हारा रिस्क बढ़ते जा रहा है, तो शेयर होल्डर्स को बुलाओ और स्पेशल रेजोल्यूशन लो. Then I can give, then there is no problem. अगर shareholders with their open eyes want to take a risk, let them take. Clear? तो ये वाला जो है, अगर लिमिट के बियॉन्ड शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए, तो लिमिट्स के अंदर कौन किसका कंसेंट चाहिए रहेगा? कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लियर है ना? सो व्हेनेवर आई गिव अ लोन guarantee or security within the limits specified under subsection 2, I will take board approval. If I exceed the limit specified, then I will take a special resolution. Next, ये subsection 3. Subsection 4 क्या बोल रहा है कि जब मैं शेयर होल्डर्स को बोलूँगा कि मैं लोन देना चाहता हूँ, तो डोंट यू थिंक प्रॉपर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएंगे? सो आई विल हैव टू एक्सप्लेन देम, भाई इतना लोन क्यों देना है कंपनी को, इसके लिए गारंटी क्यों उठाना है, इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, तो पूरा रीजंस बोर्ड को बताना पड़ेगा व्हेन दे आर कॉलिंग द जनरल मीटिंग. डिस्क्लोजर्स नीड टू बी गिवन. फिर सबसेक्शन 5. Subsection 5 says that you require consent of all the directors and consent of public financial institutions. Okay, if I have exceeded the limit or if I have done a default on the loan. Again, subsection 5 क्या बात कर रहा है कि किस किस का कंसेंट चाहिए. ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कभी कभार. अगर मैं सबसेक्शन 2 के अंदर जा रहा हूँ तो किसका कंसेंट चाहिए? Board. But always remember it is consent of all board of directors. यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए. अगर एक भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया तो फिर बाद में बोर्ड ये खुद से नहीं कर सकता, इसको शेयर होल्डर्स का कंसेंट देना पड़ेगा. सो इवन व्हेन द बोर्ड वांट टू गिव अ लोन, दे हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लियर इतना? सो बहुत कम बार ऐसा लॉ में लिखा रहेगा कि तुमको कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स की जरूरत है. तो सेक्शन 186 में जब होता है ना, सारे ही डायरेक्टर्स का कंसेंट जाता है. नेक्स्ट, अगर लिमिट से ज्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. फिर स्पेशल रेजोल्यूशन ले रहा हूँ तो डिस्क्लोज करूंगा. अब कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स तो लेना ही है, प्लस एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी कंसेंट लेना है. नाउ व्हाट आर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? सोचो अगर मैंने PFI, दे आर नथिंग बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लोग के पास से मैंने लोन लिया है.
तो सोचो अगर मैंने तुम्हारे पास से लोन लिया और मैं आगे किसी को लोन दे रहा हूँ, तो तुम्हारा कंसेंट लेने की जरूरत है कि नहीं? मैं तुम्हारे पास से लेके लोन लेके किसी और को लोन दूँ तो तुमको इरिटेट होगा कि नहीं? Yes. यस, सो तुम्हारा कंसेंट लेना जरूरी है क्योंकि तुमने मेरे को लोन दिया है। कब जरूरी है? अगर मैंने लिमिट एक्सीड किया या मैंने तुम्हारे लोन पे डिफॉल्ट किया तो ही कंसेंट पीएफआई का जरूरत है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, दिस इज द कंपनी। कंपनी ने लोन लिया फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सोचो 2 करोड़ का लोन लिया है। अब यही कंपनी आगे किसी कंपनी ने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से 2 करोड़ का लोन लिया है। कंपनी इधर डिफॉल्ट कर रही है लोन देने में, दे आर डिफॉल्टिंग, और ये कंपनी को आगे किसी और को लोन देना है। दे वांट टू गिव लोन टू दिस अनदर एंटिटी या अनदर एक ऐसी न्यू कंपनी को वो लोग को लोन देना है। तो डोंट यू थिंक पीएफआई बोलेंगे भाई तू मेरा खुद का लोन डिफॉल्ट कर रहा है देने में और तू आगे सबको लोन दे रहा है? इट्स जस्ट लाइक विजय माल्या प्लानिंग टू गिव लोन टू पीपल। So they are saying whenever that happens, please take consent of the PFIs also, ताकि वो obviously oppose करेंगे क्योंकि उनका already financial interest hit हो चुका है। Next, SEBI Act. SEBI applies to which kind of companies, listed or unlisted? Listed. 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 तो listed. तो जब listed companies होती है उसका सेक्शन 12 के अंदर जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं they all get registered under SEBI Act 1992 का section 12 registration certificate मिलता है। Can you name a few SEBI intermediaries? Merchant bankers. Merchant Brokers. bankers, तुम्हारे brokers, Underwriters. underwriters, very good. So इसमें क्या होता है कि ये SEBI रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट, वो खुद आके रेगुलेट नहीं करता है, वो उसके इंटरमीडियरीज होते हैं, उनके लोग होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये जब intermediaries have to be registered with SEBI, they are registered under section 12 of SEBI Act 1992. ये SEBI intermediaries का बॉस कौन होगा? SEBI। SAT. हाँ, मतलब SEBI intermediaries के तो हेड SEBI होगा, SEBI के ऊपर SAT है। हाँ, तो SEBI intermediaries shall not take loans in excess of the limit specified by SEBI. तो ये इनके लिए प्रोविजन है कि भाई अगर आप सेबी के इंटरमीडिएट हो तो आप सेबी के लॉस भी फॉलो करने पड़ेंगे तुमको। सो वी आर डूइंग अ चैप्टर विच इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट्स के ऊपर भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा सेबी का। नेक्स्ट, अब जब लोन्स दे रहे हम लोग, इफ आई एम गिविंग अ लोन, लेट्स से वन कंपनी is giving a loan to another company, giving loan. अब लेट्स सी तुम्हारा इंटरप्रिटेशन स्किल्स, ये कंपनी ए लोन दे रही है और कंपनी लोन बी ले रही है, ये चैप्टर किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? कंपनी ए के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि कंपनी बी के ऊपर? A. वेरी गुड, कंपनी ए के ऊपर अप्लाई हो रहा है, बिकॉज नो कंपनी, वर्ड्स ही पढ़ो उसके, नो कंपनी शैल गिव लोन्स, गारंटीज और सिक्योरिटी फॉर एनी अदर कंपनी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट। अब आता है कि चलो भाई लिमिट के अंदर है या स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया मैंने, अब लोन दे रहा हूं मैं, तो लोन में एक बहुत ही एसेंशियल फीचर होता है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट। तुम सोचो, क्या मैं बैंक रेट, ओके, बैंक रेट मतलब सोचो एफडी का रेट, एफडी का रेट चल रहा है 6%, कैन आई, विल आई गिव अ लोन टू एनी अदर पर्सन इन लेसर देन 6 और मोर देन 6? More than 6. मोर देन 6। तो वो ही तुम ही देखो ना, मैं अगर किसको लोन दे रहा हूँ तो मैं एफडी रेट से ज्यादा ही दूंगा। तो यहाँ पे बोल रहे यू शुड नॉट गिव अ लोन बिलो दिस रेट, बिलो द बैंक रेट।
विच इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर. क्लोजेस्ट टू द टेन्योर मतलब क्या, अगर लोन 3 साल का है तो मे बी बैंक में भी पता है ना, एक ही इंटरेस्ट रेट चलता है कि अलग अलग एफडी रेट्स होते हैं? अलग अलग. अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर. 1 साल का एफडी कर रहे हो, 3 साल का कर रहे हो, 5 साल का कर रहे हो, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होगा. तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई जब कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है तो कॉमन सेंस है ये रेट से ज़्यादा ही देना चाहिए. इट शुड नॉट बी लोअर. अब क्या हो गया, एक कंपनी थी तो उसने है ना लोन दिया लोअर देन दिस रेट. दे गेव अ लोन लोअर देन द रेट प्रिवेल बैंक रेट प्रिवेलिंग क्लोजेस्ट टू द टेन्योर. तुम तो इसका खाली रिसर्च किया हम लोग ने. वो कंपनी मतलब सोचो फ्रेंडली कंपनी होगा, फ्रेंडली लोन होगा. तो फ्रेंडली लोन में दोस्त की कंपनी है, मैं बोला क्या इंटरेस्ट लेना, जा तेरे को 5% पे दिया. इज इट अलाउड? No. नो. तो नहीं अलाउड था. तो बोले ठीक है. वो मैटर गया ऑडिटिंग के लिए, मतलब अकाउंट्स बन गए थे, तो सब फाइलिंग हो गई थी लोन का, कॉपीज वॉपीज. पता चला कि दे हैव डन. किसने मैटर उठाया? सीए ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसने ईमेल भेजा, बोला आपने क्या इंटरेस्ट रेट लिया है, हमारे हिसाब से तो ये 6% है, आप इससे कम कैसे दिए? यू हैव वायलेटेड 186 सबसेक्शन 7. तो then our clients were like what to do now. Both the company like now we are in a soup, we have violated the provisions. तो इतना सीरियस ऑफेंस है ये, इम्प्रिजमेंट जैसी बात आ जाती है. अगर डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट होता है ना तो इम्प्रिजमेंट, तो कंपाउंडिंग के लिए हाई कोर्ट के पास में जाके ऐसा करने का कि मेरे डायरेक्टर्स को जेल में मत डालना. So it is not a small aspect when it just seems like it's a section, subsection, but in reality any mistake in these sections ना there is very severe consequences. Clear? तो हम लोग देखेंगे इसके provision भी क्या है if you violate any of the provisions. The next is if I make any default, you think I should be allowed to give a loan? No. No. तो पहले क्या प्रोविजन है? नो डिफॉल्ट देन ओनली इट इज अलाउड. So that means if it is default is there, default is subsisting, you cannot give a loan guarantee or security till the default is been rectified. फिर एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा. So या when it comes to the no default thing, then what about getting the prior approval of the host PFI? करेक्ट. सी यहाँ पे ये पीएफआई ने अप्रूवल दे दिया तो ठीक है, बट ये लोग ने जो डिफॉल्ट प्रोविजन बोला है दिस इज फॉर समथिंग एल्स. लेट्स सी व्हिच सबसेक्शन वाज इट? 7. दिस इज इन सबसेक्शन 8 राइट. नो डिफॉल्ट. तो क्या प्रोविजन है उसके? नो कंपनी विच हैज कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट्स. तो ये क्या है? नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ, नॉट इन, एक डिपॉजिट चैप्टर किया था, अलग ही टॉपिक का है, नॉट पीएफआई का. इन डिपॉजिट्स. देन कम्स नेक्स्ट, एक ये जो तुमने लोन्स और गारंटीज और इन्वेस्टमेंट्स की है उसका तुमको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इन MBP2. दैट इज गिवन इन रूल 12. तो रजिस्टर फॉर इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और दिस काइंड ऑफ लोन्स आर मेंटेन्ड इन MBP2. ये रजिस्टर है, इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड इट विल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. नाउ सबसेक्शन 11 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सबसेक्शन 11 क्या बोलता है कि few companies are exempt from section 186. Few companies are exempt from section 186 except subsection 1. Except subsection 1 मतलब subsection 1 applies to all. That means subsection 1 applies to
ऑल कंपनीज। वो लेयर वाला जो प्रोविजन है ना, वो सभी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। ये जो प्रोविजन है ऑफ सबसेक्शन 2 ऑनवर्ड्स, इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल दीज कंपनीज। समझते तुम? यू अंडरस्टैंड इमीडिएटली। टेल मी वन थिंग, कैन एनी कंपनी गिव अ लोन guarantee or this beyond the limit? Yes. I mean, without the consent of shareholders? No. 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 But एक बैंकिंग कंपनी लोन दे सकती है Yes. क्योंकि उनका धंधा ही है, उनका ऑर्डिनरी, उनका प्रिंसिपल बिजनेस है। इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी भी, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज है। ये लोग सब इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत सब इन्वेस्टमेंट्स करती है, बैंकिंग कंपनी लोन देती है, एनबीएफसी लोन देती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज कितने सब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इवन अगर किसी ने गवर्नमेंट इन डिफेंस, इफ गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके ऊपर भी एंड इट इज इन डिफेंस, तो उनके ऊपर भी ये सब प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिंदास लोन दे सकते हैं। और एक है सेक्शन 62(1)(a) टॉक्स अबाउट राइट इशू। राइट इश्यूज में भी अगर मैंने बाय किया पर्सन टू अ राइट इशू, इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड पर्सन टू अ राइट इशू, तो चल जाएगा। क्या है दैट लोन्स, गारंटी और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी शैल नॉट बी मेड beyond that limit, but in right issue जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, when you buy securities pursuant to a right issue, सोचो मेरी कंपनी ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आई एम अ शेयर होल्डर इन योर कंपनी, माई कंपनी इज अ शेयर होल्डर। कल उठ के तुमने राइट्स इशू में मेरे को दिया और मैंने उसमें बाई किया, तो वो ये लिमिट के लिए काउंट नहीं होगा, तो दैट इज एग्जेम्प्टेड राइट इशू में जो बाई करते हैं। तो ये सारी ही कंपनी जब देखोगे, ये लोग सब कहीं ना कहीं बिजनेस है इनका, लोन वोन देने में, इन्वेस्टमेंट करने में या गारंटीज देने में। तो इन लोग को बोलेंगे कि हर टाइम शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो, सो इट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज दिस दे आर गोइंग टू ओनली डू दिस इज द बिजनेस। कोई दूसरा कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट बड़े बड़े लोन दे रहा है, तुम्हारा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोन दे रहा है, तो बात होता है, बट अ बैंकिंग कंपनी लोन देगा इज नॉट गोइंग टू रेज आईब्रोज। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट can prescribe the rules and penal provisions are also given. So if we just go through it once again, यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 186, ओके, 186 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? No company shall have not more than 2 layers of investment companies. मतलब no company shall have more than 2 subsidiaries as investment companies. What do you mean by subsidiary? A layer? Subsidiary. So layer is given under section 2 subsection 87, which means it's subsidiary. Next, दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अगर क्या एक्सेप्शन था कि मैं हो सकता है मेरे सब्सिडरीज, अगर मैं तुमको बोलूं नहीं मेरे तो 3 सब्सिडरीज है इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो क्या ऑप्शंस होंगे? Foreign companies. हाँ, सो इफ अ कंपनी, सोचो टाटाज acquires any company which is incorporated outside India and such company has investment subsidiaries beyond 2 layers, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। I acquired a US based company which has more than 2 layers as per the laws of their country, उनके country में allowed है, तो then it is not an issue, or where it is for the purpose of requirement of any law. एंड थर्ड में काफ़ी सारे प्रोविजंस है तुम्हारे कंपनी लॉ में, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। व्हाट इज IFSC? एनी आइडिया? International Finance Service Center. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, ये क्या कॉन्सेप्ट भी है, तो दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन, बट मेनी टाइम्स यू विल नोटिस दैट इट डज नॉट अप्लाई। ओके, यस,
So right now just remember it doesn't apply to IFFC companies. Now subsection 2 में क्या दिया था? लिमिट्स दिए थे. लिमिट्स क्या है? 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स, विच एवर इज मोर, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन गारंटी और सिक्योरिटी दैट वी आर गिविंग. समझ में आया? अब इसके अंदर भी देखोगे बोर्ड को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा व्हेन दे वांट टू डू दिस. व्हाट इफ आई वांट टू गिव बियॉन्ड द लिमिट्स specified under this, so I require a special resolution. Now obviously then I have to disclose the full particulars of the loans, guarantees or investments. Approval of PFI subsection 5. ठीक है, you require approval of PFI is necessary. कभी? When I've exceeded the limits or I've made a default. Subsection 6. No company registered under section 12 of SEBI Act, okay, shall take any loans, guarantees or investments in excess of the limits provided. Rates में भी क्या है? No loan shall be given at an interest rate lower than the prevailing rate. So I cannot give a loan below the interest rate. नहीं तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है. फ्री में आजकल लोन देता कौन है? आज मेरे को अगर एफडी में 6% मिल रहा है फिर भी मैं रिस्क लेके किसी और को 5% पे क्यों दूंगा? तो कुछ तो ये लोग गड़बड़ लगता है. बिलो द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, दैट इज 1 year, 3 years, 5 years और 10 years क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन. तो अगर मेरा लोन 10 साल का है तो मैं कौन से ईयर का इंटरेस्ट रेट देखूंगा? 10 years का. Next is no loan by a defaulter company. So if a company has defaulted in the deposits, okay, they shall not be allowed to give a loan, guarantee or security till the default is subsisting. They have to maintain a register in MBP 2. Non-applicability of section 186 does not apply except subsection 1. Subsection 1 applies to every single company. जो इन्वेस्टमेंट वाला है, लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी, डज नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनी कंपनी engaged in infrastructure facility whose principal business is a acquisition, this is an investment company, or a NBFC, non-banking finance company. Penal provisions. अब तुम देखोगे penal provisions क्या थे? अगर कंपनी ने लायबिलिटी ऑफ कंपनी को फाइन लगता है 25,000 और 5 लाख, तो वो लोग तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे से गलती हो गई, इंटरेस्ट रेट नहीं किया, भर देंगे पैसा, 5 लाख बड़ी बात नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या था? ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को क्या हो रहा है? If default in the provisions of the chapter, the officers may get an imprisonment up to 2 years. So they panicked. They were like all very, very well off and successful entrepreneurs who had a lot of brand name in the market, goodwill in the market. वो लोग को ऐसा लग रहा है यार हम लोग ने ये लोन का जरा, हम लोग को तो लॉ भी नहीं पता है और हम लोग में से कोई जेल में चले जाएगा तो क्या होगा? Okay, so they didn't mind paying the fine, but they were like, they still have a power to put you in jail. So then उसके लिए हम लोग अलग अलग वेज ढूंढ रहे थे कैसे कंपनी को बचा सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं. नाउ यहाँ से इफ वी जस्ट ट्राई टू सी द सबसेक्शंस, ओके, सो let's see, we'll make the subsections. Thirteen subsections है. Section 186. 1, 2, 4.
Meghna, you're there? Yes, sir. Yeah. What is section 186 subsection 1? It's talking about a company cannot have more than 2 layers of More investment. than 2 layers. Okay. Sejal, what is subsection 2? Payal? So it's talking about the limit of the outflow. Yeah. What is Like, the amount of loan, guarantee or investment in securities that you're making? How much is that? the 60% of Paid up 60% capital, of free fees is a deposits. paid up capital, yeah, Yeah. and security premium account, Correct. Great. or Then 100% of FR plus SP, whichever is higher. correct. Now the next is what is subsection 3? Prior approval of shareholders. Yeah. So you Special require resolution. a special resolution if you want to go beyond the limit. Part, what is subsection 4? Disclosure of in financial statement. करेक्ट. तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा क्यों लोन देना है, क्या करना है. ओके. व्हाट इज सबसेक्शन 5? एनीवन कैन अनम्यूट एंड से. Prior approval of financial institutions. वो पीएफआई एंड बोर्ड का कंसेंट चाहिए हम लोग को. कंसेंट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पीएफआई. देन सबसेक्शन 6. SEBI intermediate. ओके, वेरी गुड. सो सेक्शन 12 वाला सेबी इंटरमीडियरी. सबसेक्शन 7, Rate of interest. द इंटरेस्ट रेट. फिर सबसेक्शन 8. No default in deposits. Okay. Default provision. Yeah. 9th, Register. MBP. कौन सा Two. था? MBP 2. What is subsection 10? Inspection, open for inspection. देखो सीक्वेंस में ही रहेगा. अगर MBP 2 में रजिस्टर मेंटेन करोगे तो नेक्स्ट में वो रजिस्टर को इंस्पेक्ट करने के लिए लोग रजिस्टर ऑफिस में आके देख सकते हैं. देन सबसेक्शन 11. It talks about the exemption from the Exemption. provisions of this section. Yes. So कौन से ये लोन्स का प्रोविजंस कौन एग्जेम्प्ट है, किसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा? सबसेक्शन Banking 12. company. Banking Yeah. companies and Then NBFCs. subsection 12. Defaults. What is subsection 12? Central government rules. Central government rules. And last one is the Penalty provisions. penal provisions. From here, even if you don't remember all of them, okay, you need to know first is subsection 2 by heart. Then even subsection 3. We need to know subsection 5. You need to know the form number. MBP 2 के अंदर दिया है, but कौन से रूल के अंदर? Rule 12. Rule 12. Okay, and that is it. On subsection 11 is also important, किसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा. Are we clear with this? So ये अपना section 186 हो गया, loans and investments by company. So, Yeah. this unanimous board of this thing resolution, is it required only when the limits exceed or even otherwise? In all cases. Okay. Okay. Now we said कि ये MBP 2 देखा था. अब section 187, not a very important section. Tell me one thing. All the investments तुम जो भी करोगे तुम्हारे खुद के नाम में होना चाहिए. Right or wrong? Yes. Yes. Not So, necessary. yeah. So first thing that they're saying on the first prima facie, first they're saying that the company should hold investments in own name. तो खुद के नाम पे ही तुम्हारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स है तुम्हारे ही नाम पे रखो.
बट कभी कभार इन्वेस्टमेंट्स नॉट इन ओन नेम. ओके, एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा एंड इट विल बी केप्ट इन नेक्स्ट एमबीपी फॉर्म, MBP3. और MBP क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज मीटिंग्स एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड. तो इसके लिए MBP शॉर्ट एब्रीविएशन लिया है. So the company should have all the investments held in its own name, but in case if the investments are not held in its own name for whatever purposes, it will be kept in a separate form, that is in MBP3. Now just few terms we are seeing कि free reserves क्या होता है. Now free reserves are those reserves which are available for distribution as dividend. तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में जो पैसा है, रिजर्व्स में जो पैसा है, रेवेन्यू रिजर्व में जो पैसा है, सिंकिंग फंड जब बनाया, जब कोई डिबेंचर्स नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुमने सिंकिंग फंड बनाया, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स. सो दीज ऑल विल बी काउंटेड इन योर फ्री रिजर्व्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ नॉट फ्री रिजर्व्स. So this can be used, जब हम लोग बोलते हैं ना कि free reserves इतना होना चाहिए, 60% of paid up capital plus free reserves plus security premium. तो free reserves में क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए. These all form a part of your free reserves. Next is paid up capital. क्या होता है? So what is the third item like after general reserve? Revenue reserve. Okay. Then so in your accounts you will come to know, right now in company law you won't find all this. They just say that as free reserves are those which are shown as free reserves in your balance sheet, because this is the chartered accountants will prepare and say that this is the free reserves. Paid up capital is the amount that has been paid up by the shareholders. Now let's see, these two sections we have done before in company law, section 2 subsection 20 and section 2 subsection 11. Do you all remember which section is this? 2 subsection 20. Bhavi? Or company. Very good. So section 2 section 20 defines what is a company. A company is a entity registered or incorporated under the Companies Act or any previous law. Next, section 2 subsection 11, it talks about body corporate. You know, chapter 1 में देखा था body corporate क्या होता है, which is a wider term. Body corporate. Body corporate. See, a foreign company is a body corporate. It is not registered and incorporated under Companies Act, but it is registered and incorporated and has a separate legal existence. It is registered under any other act than company law, तो भी वो हो जाएगा. So body corporate includes company, includes foreign company, any entity which has a separate legal existence. You tell me, does it includes limited liability partnerships? Yes. Yes. So LLP भी आ जाएगा. Anything which has a separate legal existence is a body corporate. So trust, trade unions can also be as body corporates. Clear? So section 2 subsection 11 में you can see what it is given. Then we've also done two more sections. Well, let's see if you remember. Section 2 subsection 81. और जब सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 में देखने जाते कि क्या है, तो वो तुमको फर्दर ट्रांसफर करता है अंडर सेक्शन 2H ऑफ SCRA, Securities. वेरी गुड. तो द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 81. नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, what is that talk about? Yes, it talks about Shares. Shares. So what is a share? So a share is said as a share in the share capital of the company, which is a wider term again.
Securities. Security is a wider term. It includes shares, it includes debentures, it includes mutual funds units, mutual funds, it includes chit funds, it includes CIS, it includes, derivatives, etc. It includes bonds. Very good. Everything, all financial instruments are securities. Clear it now? Now let's go through the module. Now, when we go through the module, the real chapter starts after some time. So first, let's see. The board under section 179, हम लोग ने देखा था, have certain powers. Okay, the board has certain powers of the board is given under section 179. So they can invest into companies, they can give loans when 79 में powers है. तो इसको एक बार just read कर सकते हैं, not important. They have also given you few terms. What is free reserves? Free reserves are such reserves as per the last audited balance sheet of the company and are available for distribution of dividend. तो जो भी अपने हम लोग क्या देखते हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरीज, वी डोंट सिट टू कंप्यूट फ्री रिजर्व्स. हम लोग के लिए क्या बोला है कि लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो है एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड इज द गिवन एज फ्री रिजर्व्स, प्रोवाइडेड दैट any amount representing as unrealized gains or notional gains, whether shown as reserves or otherwise, shall not be treated as reserves, or any change in carrying amount of assets or of liabilities recognized in equity, including surplus in profit and loss on a measurement of assets at a fair value, revaluation अगर हम लोग ने किया, shall not be treated as reserves. So in accounts, you will see what is free reserves. Right now, you've seen the definition that all those that is shown in the balance sheet will be treated. Then comes paid up capital. Section 2, subsection 64 means the aggregate amount of money credited as paid up is equivalent to the amount received as paid up in respect of the securities. Now, body corporate वो लोग ने दिया है section 2 subsection 11. What is a body corporate? But it does not include a cooperative society or any other body corporate as may be specified by the government. And body corporate includes a foreign company incorporated outside India. Now, अभी तक कहीं पे भी तुमने सेक्शन 186 के बारे में देखा नहीं, वो जनरल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. Even now, this they are giving you what is definition of investment company. Investment company means a company whose principal business is acquisition of securities. Then, as per Schedule 6, they have told what are infrastructure projects and infrastructure facilities. Infrastructure means what? Related to transportation, roads, railways, ports, aviation, logistics. Agricultural related to storage facilities, construction, reservoirs. When it comes to water management, then irrigation, water treatment, telecommunication related, any kind of satellite that you're making, all this. So these are all not important. They are told you what is infrastructure and infrastructure facilities. सब अभी तक definitions ही चल रहा है. Then they go on to tell what is security, section 2 subsection 81. Then they bring you to, when you go in the definition, they'll take you to section 2H. 2H में सब दिया हुआ है. Now your chapter starts. From here it is important. Clear it now? So from the very start is not important.
The chapter starts from your section 186. Now, not more than 2 layers of investment company. No company shall make an investment through not more than 2 layers of investment companies. The aforesaid provision shall not affect a company from acquiring any other company incorporated in a country outside if such other company has an investment subsidiaries beyond 2 layers. So अगर हम लोग कोई कंपनी उठा रहे जो अब्रॉड की है जिसके ऑलरेडी 2 लेयर्स है तो चलता है. Subsidiary company from having any investment subsidiaries as a requirement of any law. अगर कोई law का requirement है तो जरूरत नहीं है. Okay. Then they come to the subsection 2. Subsection 2 talks about no company shall give any loan to any person or any other body corporate. Now, remember we did one difference between company and body corporate. Yes. Yes. अभी देखो उसका मैं तुमको इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि ये काई को आया बीच में सडनली कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. This provision giver should be a company or it can be a body corporate also. Giver of loan, guarantee or security. क्या लिखा है? Company. It has to be a company only. So this chapter applies to companies. So no company shall give any loan, guarantee or security to taker. देखो receiver of loan. क्या receiver of loan को company होना जरूरी है? No. No. तो बोल रहे कि भाई ये कंपनी गिवर को बोल रहे तू जरा हम तेरे बारे में सोच रहे कंपनीज एक्ट कि तुम किसको भी लोन गारंटी सिक्योरिटी बियॉन्ड द लिमिट्स देना नहीं किसी को भी. तो बोलेंगे किसी को भी मतलब क्या? एनी पर्सन ऑल्सो और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो. सर में सो इट इज अ मोर वाइडर प्रोविजन. तो कंपनी का पैसा कहीं पे भी जा रहा है किसको भी जा रहा है तो लिमिट लगा दिया है. समझे अभी डिफरेंस क्यों रखा बॉडी कॉर्पोरेट का? सो दिस चैप्टर डज नॉट अप्लाई व्हेन अ बॉडी कॉर्पोरेट इज गिविंग अ लोन. इट इज अप्लाइंग व्हेन अ कंपनी स्पेसिफिकली इज गिविंग अ लोन एंड इट गिव्स टू एनीबॉडी. Gives to a foreign company, gives it to any LLP, gives it to any registered trust society, registered trust, etc. Clear? In excess of paid up capital plus free reserves and security premium or 100% of free reserves and security premium, whichever is more, unless it is authorized by special resolution. क्या ये चैप्टर हर एक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है? जब मशीन आया था No. तब कंडीशन. तो आई टोल्ड यू ऑल सेक्शन 186 सबसेक्शन 11 दिया हुआ है. उसके अंदर क्या लिखा है कि ये चैप्टर किस किस को नहीं अप्लाई होगा एक्सेप्ट सबसेक्शन 1. तो सबसेक्शन 1 हर एक कंपनी को अप्लाई होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सबसेक्शन 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स इट डज नॉट अप्लाई टू लेट्स सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो भी जिनका काम इन्वेस्टमेंट या लोन करना रहेगा. इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, investment companies, okay, your NBFCs, etc. एक गवर्नमेंट कंपनीज को भी एग्जाम कर दिया है which are engaged in defense from 2015 and even a government company जिसने कोई obtains approval from ministry. तो generally government companies को भी एग्जाम किया. पेनल्टी दिया हुआ है. आई शोड यू ऑल पेनल्टी कंपनी के लिए अलग है और इनके लिए अलग है. So this also you can mark as important. तो कंपनी के लिए 25,000 5 lakhs और ऑफिसर्स को भी पेनल्टी लग सकती है. 2 साल की जेल भी हो सकती है. Now meaning of the term investment. Now when I say investment मतलब ये जनरल इसका इम्पोर्टेंट नहीं है. They are saying investment मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट. बट यहाँ पे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं it is used in a limited sense to invest in the shares, securities of the company.
नाउ सबसेक्शन 5, क्या था सबसेक्शन 5 का? सो कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड पीएफआई का भी अप्रूवल दिया था, अप्रूवल ऑफ पीएफआई, प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर लिमिट के ऊपर जा रहा है तो यू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑल. Okay, then they have given disclosures, so they have not given in order. We can do that. Subsection 5 again, PFI ka rate of interest should not be lower, default नहीं होना चाहिए deposits में, registers should be maintained, registers rule 12 में दिया हुआ है, it has to be in form MBP2. ये register किधर maintain करोगे? Registered office. It will be kept at the registered office and it shall be preserved permanently and in the custody of the company secretary, and every entry shall be authenticated by the CS. Now ये अपना 186 सेक्शन हो गया, इट इज इम्पॉर्टेंट. अब 187 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसमें क्या लिखा है? ऑल इन्वेस्टमेंट्स शैल बी हेल्ड बाय अ कंपनी इन इट्स ओन नेम. तो ऑब्वियस है ये उसका फर्स्ट पार्ट 187. हाउएवर यू कैन हैव, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल रहे कि यू शुड हैव इट इन योर ओन नेम ओनली एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स. इन केस कंपनी इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी या कंपनी किसी और के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कोई और रीजन, कोई भी पर्पस के लिए वो होल्ड कर रहे हैं, ओके शेयर्स, देन इन सच केस यू हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर and this register will be maintained when the investments are not held in its own name. It will be held in MBP. कौन सा फॉर्म था? 3. MBP3. Every company shall from the date of its registration maintain a register where but which it is not held in its own name. They are the beneficial owners, but they do not have not the registered owners. Punishment. And then the second part of the chapter starts, that is the related party transactions. Now related party transactions is a very very important topic. It has always been and it is always repeatedly asked also. However, it's a very simple concept. Let's understand what do you mean by related party transactions and the provisions under company law. Firstly, let's understand. Now, a company on a regular basis must be having transactions with the related parties. Possibility है या नहीं? Yes. Yes, ठीक है. तो companies have transactions with related parties. अब कैसे रिलेटेड हो सकते हैं? हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्टर जो है, ओके, डायरेक्टर, और यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी है ये उसका डायरेक्टर्स ब्रदर है, डायरेक्टर्स brother. So this we can say is a transaction which is related among related parties. Now what they say, can the company enter into a transactions where the person with whom they are doing is a related party? ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? कर सकते हैं. कर सकते हैं. इसके लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस लॉ ने कैसे डिवाइड किया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना है तो विद इन लिमिट रहेगा, ओके, विद इन लिमिट्स, और दूसरा है एक्सीडिंग द लिमिट्स, कि बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन है विद अ रिलेटेड पार्टी. सो इफ इट इज विद इन लिमिट तो कौन सा रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से? खाली बोर्ड रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी.
बट अगर पता चला कि काफी बड़ा 10% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी के जितना ट्रांजैक्शन कर रहे विद रिलेटेड पार्टीज, देन किसका कंसेंट? डू यू थिंक खाली बोर्ड का कंसेंट चल जाएगा? Shareholders. शेयर होल्डर्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड. नाउ विच रेजोल्यूशन? दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल. Special. Special. बट ये स्पेशल था, बट क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई किया है और इसको अभी बोला आपको स्पेशल की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेके भी आप कर सकते हो इफ इट इज एक्सीडिंग. तो किसी ने बोला कि ये ऐसा क्यों किया कि ऑर्डिनरी, पहले स्पेशल था बट नाउ दे सेड ऑर्डिनरी, बिकॉज व्हाट हैपेंस, कंपनीज दे एंटर सो मेनी ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज. अब देखो, ये तो चलो डायरेक्टर उसका भाई था, हो सकता है कि डायरेक्टर को अच्छा रेट पे दे रहा है, कंपनी को अच्छे रेट पे दे रहा है, तो दे आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन. समटाइम्स दीज आर फैमिली बिजनेसेस. फैमिली, अगर सोचो मेरी फैमिली है, मैं मेरे भाई को नहीं दूंगा बिजनेस, इट कुड बी एट अ वेरी गुड रेट. सो देन लॉ इज सेइंग कि यार मेजॉरिटी लोग अगर एक्सेप्ट करे तो लेट इट बी. सेकंड, सो दिस आई टेल यू, वंस आई वाज चेकिंग द रिलायंस का कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जो घर पे आता है. एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. कौन सा होता है वो? Board report. बोर्ड रिपोर्ट. अब बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डज एनीवन रिमेंबर अकाउंट्स चैप्टर कौन से उसके अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स करता है? एओसी. Or एओसी किसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बताते हैं हम लोग? एनीवन? आंसर इज एओसी 2. एओसी 4 क्या है? अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं ना, वो एओसी 4 है. जैसे एजीएम कंप्लीट हुआ फिर दे देना है, ये एओसी 2 है, जिसमें रिलेटेड पार्टीज बोर्ड रिपोर्ट डाल के देंगे कि हम लोग रिलेटेड पार्टी दे रहे हैं. तुमको लग रहा है ये कम ट्रांजैक्शंस होंगे कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे. इतने सारे ट्रांजैक्शन है, बिकॉज आई वाज वंडरिंग ये कौन सा रिलेटेड पार्टी. तो ये ऐसा वाला सिनेरियो नहीं था, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी थी और वो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे अपनी ही सब्सिडरी के साथ में. डोंट यू थिंक इट इज अ रिलेटेड पार्टी? होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, it is. तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस लिखे थे भर भर के, ये लो भाई हम लोग करते ही जा रहे करते ही जा रहे. तो देन लॉ सेज कि भाई ये तो रूटीन वर्क में भी लोग अपने ही रिलेटेड पार्टीज, अपनी एसोसिएट कंपनीज, अपनी ग्रुप कंपनीज के पास से बाई करते हैं. So not a very big problem as long as the audit committee checks it. Okay. Related party shareholders को भी पता चली जाता है AOC 2 के अंदर. और दूसरा, all these transactions, ठीक है, जो भी है will be checked by the audit committee. So it will be scrutinized, approved by audit committee. Now you tell me, अगर तुम ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज रेगुलरली, उनने बोल ही दिया कि मैं मेरे सब्सिडरी के पास से ये रॉ मटेरियल मंगाने वाला हूँ, ठीक है, तो वो तो एवरी एक साल में कितने सारे लाखों ट्रांजैक्शंस करते होंगे. तुमको लग रहा है ऑडिट कमेटी को एक एक सिंगल ट्रांजैक्शन जैसे अप्रूव करने पड़ते होंगे? हर एक ट्रांजैक्शन का एक अलग से अप्रूवल, कि एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे देना चाहिए? Blanket approval. Blanket approval. तो ब्लैंकेट अप्रूवल में क्या होता है, ऑडिट कमेटी को पहले समझाएंगे वो लोग कि भाई हम लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल पार्ट हम लोग हमारी सब्सिडरी से मंगाएंगे, हम लोग ने सब कंसेंट दे दिया है, शेयर होल्डर्स का भी आ गया, इसका भी कंसेंट आ गया. अब जब मैं वापस 6 महीने बाद ये सेम माल मंगाऊंगा तो वापस मत बोलोगे नया ट्रांजैक्शन है, कंसेंट लो. तो ऑडिट कमेटी क्या करती है, एक अप्रूवल बनाती है, लाइक अ ब्लैंकेट अप्रूवल. दैट blanket approval is called as a omnibus approval. Is called as a omnibus approval. Omnibus approval means a blanket approval.
कि चलो भाई, इसमें वो लोग बताएंगे ऑडिट कमेटी में कि भाई कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट कितना होगा, कौन सा गुड सर्विस, किसके बारे में बात हो रही है, वो सब वो लोग बताएंगे और बोलेंगे ये आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, हमारा डीम्ड अप्रूवल आप समझ लो। यहाँ तक समझ में आया? नाउ बोर्ड रिपोर्ट में भी आ गया, ऑडिट कमेटी ने भी चेक कर लिया, शेयर होल्डर्स का भी कंसेंट आ गया, छोटा मैटर रहेगा तो डायरेक्टर्स ने भी चेक कर लिया। क्लियर है इतना? अब बात आती है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी। ठीक है, सो लेट्स सी। फर्स्ट इज रिलेटेड पार्टी के प्रोविजंस कहाँ पे दिए हुए हैं? द प्रोविजंस आर गिवन अंडर सेक्शन 188 के अंदर दिया है, इट हैज टू बी रेड विथ रूल 15 ऑफ कंपनीज मीटिंग्स एंड पावर ऑफ द बोर्ड्स रूल्स 2014। याद है, समझे? रूल 15 तुमको बाय हार्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहे हैं? सबसेक्शन 1, subsection 1 has these many points that a company can, with the approval of the board, sell or purchase goods, या सेल और परचेज सर्विस नहीं होता है तो अवेल और रेंडर सर्विस, ये सर्विस हो गया, गुड्स हो गया, या तो प्रॉपर्टी बाय सेल या परचेज करनी है, या हम लोग ये गुड्स परचेज करने के लिए कोई एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, या लीजिंग के लिए किसको अपॉइंट कर रहे हैं, या अंडर राइटिंग के लिए किसको अपॉइंट कर रहे हैं, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए किसको अपॉइंट कर रहे हैं। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, आई विल टेल यू, बट ये जो भी चीज़ें हैं हम लोग कर सकते हैं, वी कैन एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। Approval of the board, all these transactions of buying goods, taking service, or buying property, or appointing agents, or appointing someone as an underwriter, even if he is related to me, I can appoint leasing के लिए किसको देना है, office of profit का, we can do it with a related party if within limit रहेगा तो board का consent, but if it is exceeding the consent, exceeding the limit, then ordinary resolution। ये भी कहाँ दिया हुआ है? रूल 15 के अंदर। ठीक है, लेट्स सी। नाउ यू टेल मी, अगर एक रिलेटेड पार्टी के बारे में बात करें, वी आर टेकिंग ऑफ अनदर एग्जांपल। एग्जांपल में क्या है कि एक कंपनी है, प्राइवेट एक कंपनी है, उस कंपनी को अपॉइंट करना है एक फर्म। ओके, they want to appoint a person as a supplier। कंपनी का ये डायरेक्टर है, लेट्स से प्रमोद डायरेक्टर है कंपनी का, और कंपनी wants to appoint the supplier is Pramod's wife। Tell me, isn't Pramod a interested director? Yes. When I say interested, मतलब क्या? He is personally interested. He has a personal inclination towards this transaction because his relative is involved, his family member is involved. Now, company wants to decide that let us do the transaction with Pramod's wife. They want to consider this transaction. That Pramod's wife has a business, she has a good business, she's giving at a good price, they want to discuss it. Now while discussing and taking the votes, okay, they want to enter into a transaction with a related party, so it will be called as a related party transaction अगर उनको करना है तो, क्योंकि एक कोई ना कोई related है इस केस में director। You think when this matter is put to vote,
Pramod should be allowed to sit in the meeting? No. No. No, because क्या सीन है कि ये related party तो favor में ही बात करेगा. So what they are saying that the related party should not be allowed to vote on this transaction. So very simple, common sense है कि related party तो favor में ही बात करेगा. तो जो disinterested directors है, मतलब जो interested नहीं है, जिसमें कोई भी personal interest नहीं है, वो बैठ के vote करेंगे. So related party not to vote on the transactions. However exceptions है कि कौन सी केसेस में ये सब चलता है, रिलेटेड पार्टी बैठ के वोट भी कर सकती है. फर्स्ट इज छोटी कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में चल जाता है. तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में कर सकते हो? No. नो. तो इमेजिन इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज वांट्स टू डू अ ट्रांजैक्शन विद माय सिस्टर and they want to take a consent of the directors, can I go and vote? No. No, because it is a listed company. But अगर प्राइवेट कंपनी रहेगी तो अलाउड. अगर गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट इंटरेस्टेड पार्टी है चलेगा. अगर 90% ऑफ द पीपल आर रिलेटेड तो भी बैठ सकते फिर. तो ये सबके सभी रिलेटेड है. तो हो क्या रहा होगा, फैमिली बिजनेस होगा, ये फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेस होगा और आपस में ही वो लोग कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेहता एंड सन्स, मेहता एंड सन, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड और सम कंपनी, पब्लिक कंपनी सोचो, मेहता एंड सन्स, वो लोग की एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है. क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब क्या, वेरी फ्यू आउटसाइड पीपल आर देयर, ज़्यादातर फैमिली के ही बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है. और वो लोग को एक ट्रांजैक्शन करना है विद वन ऑफ देयर ब्रदर्स, दैट इज प्रफुल्ल मेहता. प्रफुल्ल करके एक बंदा है, प्रफुल्ल मेहता, इनका ही अंकल या कोई रिलेटेड है, रिलेटिव है, इनके साथ में ट्रांजैक्शन करना है. अब ये कंपनी में हम लोग ने बोला भाई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड पीपल है वो लोग बैठ नहीं सकते. तो बोलेंगे भाई मेहता एंड सन्स है, सबके सभी इंटरेस्टेड है. सो व्हेन 90% ऑफ देम आर रिलेटेड, सोचो सबके सब, ये मेहता, जिग्नेश मेहता, यू नो प्रमोद मेहता, आनंद मेहता, बिन्नी मेहता, सब मेहता मेहता मेहता, तो सबको ही बोलेंगे बाहर जाओ, तो बचा कौन फिर. सो देन दे आर सेइंग if it is seems like a family business and 90% are related, then they can sit and vote. Next, ये जो भी disclosures है related party के, वो किधर आएंगे? It will come in the board report, ठीक है. और board report के अंदर भी दिया हुआ है फॉर्मेट. AOC कौन से इसमें है? AOC 2, ठीक है. अब आता है ऑडिट कमेटी का रोल, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ऑडिट कमेटी हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को स्टडी करेगा. एवरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमेटी. अब हर एक ट्रांजैक्शन प्लेस करने जाएंगे और मैं बोलूँगा भाई ये तो रूटीन फीचर होने वाला है, तब वो लोग एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे सकते हैं. बट ये ब्लैंकेट अप्रूवल कैन नेवर बी फॉर ट्रांजैक्शंस ओवर 1 करोड़. मतलब मैक्सिमम वो बता देंगे कौन सा ट्रांजैक्शन है, कितने वैल्यू तक कर सकते हो ट्रांजैक्शन, बट मैक्स 1 करोड़. अब 1 करोड़ क्या है, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि 2-3 करोड़ के ट्रांजैक्शन करते रहो, अप्रूवल दे दिया टू डू. छोटा ट्रांजैक्शन चल सकता है, बट अगर 1 करोड़ के ऊपर का वैल्यू है तो ऑडिट कमेटी को इसको इंडिविजुअली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा. ब्लैंकेट अप्रूवल कैन नॉट बी गिवन फॉर ट्रांजैक्शंस ओवर 1 करोड़. इतना तो बैठ के तुम देख ही सकते हो, 1 करोड़ के ऊपर की बात है. फिर यहाँ पे कंपनीज एक्ट में पहले देखते हैं एक लास्ट पार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी? कंपनीज एक्ट 2013 में so section, anyone knows which section it is? 188. ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन, आई एम सेइंग डेफिनेशन. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वो लोग ने
सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 बनाया एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 बनाया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ रिलेटेड पार्टी, बट रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन करोगे तो ऑडिट कमेटी चेक करेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, XYZ। अब क्वेश्चन आता है हु इज रिलेटेड पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी? तो वो डेफिनेशन कहाँ पे दिया है? 77 section 2 नहीं, subsection 77. हाँ, सो रिलेटेड पार्टी इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 एंड रिलेटिव कौन है इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77। तो रिलेटेड पार्टी मतलब क्या? सबसे पहला तुम्हारे हिसाब से अगर मैं बोलूँगा रिलेटेड पार्टी तो कौन होगा वो? Relatives. Relative. Relatives. So they have said that relatives are related party. First point only कि relative में related party relatives होता है, but apart from relatives भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो related है। See, no doubt relatives है, relatives are related party, but then also a firm in which the director is a partner, or a company in which the director is a director, you're also common director है, okay, a company in which he is a director, or any company in which they are holding substantial shares। सर में आ रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली रिलेटिव ही हो। नाउ रिलेटिव भी बोलेंगे तो कौन रिलेटिव? मैं बोलूँगा मेरे छोटे भाई की भाभी की लड़की की मौसी की नानी, इज शी रिलेटेड टू मी? नाउ दे आर सेइंग रिलेटिव का भी एक बेसिक डिफाइंड स्कोप होना चाहिए। तुम नोटिस करोगे तो वो लोग ने कैसा बोला है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारे मम्मी डैडी, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे भाई बहन, ओके, और सब जगह स्टेप लगा देने का, स्टेप सो स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, ओके, अडॉप्टेड सन, ये सब इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, और सबसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड पार्टी कौन होती है? स्पाउस। स्पाउस, क्लियर है ना? दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी रिलेटिव्स। अब ये तुमने यहाँ पे दिया है, इवन इन लिस्टेड कंपनीज के लिए LODR में भी प्रोविजंस दिया है फॉर LODR। LODR में दे हैव डिफाइंड रेगुलेशन 21ZB एंड 21ZC। ये भी इट्स सिमिलर, जैसे वहाँ पे देखा था हम लोग ने रिलेटेड पार्टी कौन होता है, तो LODR में कौन से रेगुलेशन में दिया है? 21ZB। एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, और ट्रांजैक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी इज गिवन अंडर 21ZC। इसके अंदर क्या दिया है, एक रेगुलेशन जो हम लोग को जानना है, रेगुलेशन 23। रेगुलेशन 23 क्या बोलता है कि ऑफ LODR, अभी हम लोग बस लिस्टेड कंपनी का देख रहे हैं, ऑफ लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, दैट एक रिलेटेड पार्टीज के साथ में कैसे ट्रांजैक्शन करने का एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ये कौन से मैटर्स क्या कैसे करना है, तो एक रिटन डाउन पॉलिसी होनी चाहिए फॉर द कंपनी। ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिक्वायर कंसेंट ऑफ ऑडिट कमिटी एंड ऑब्रीवियस अप्रूवल भी रहेगा, तो मैक्सिमम 1 CR का दे सकते हैं। क्लियर? सो इफ यू सी, ये अपना लिस्टेड कंपनी के रेगुलेशन यू शुड नो। Now we'll just see one important part and then we'll be done. We'll go from the main law. Let's see. You can see my screen. See, now we are going in section of the Companies Act only. कितने subsections दिख रहे हैं तुमको? 5 subsections. सबसे पहला वाला subsection क्या है? Except with the consent of the board, okay, no company shall enter into a contract with a related party with respect to purchase of goods or service or property or leasing
or appointing someone as an agent, office of profit or underwriting. क्या तक समझ में आया? ये सब नहीं कर सकते विद द रिलेटेड पार्टी एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड. समझ में आया ये बोर्ड के कंसेंट के बिना तुम नहीं कर सकते हो ये चीज़ें. नेक्स्ट, प्रोवाइडेड. अब ये सब थोड़े एक्सेप्शन है कि ये सब कब अप्लाई नहीं होगा. प्रोवाइडेड नो कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज अ लेस अमाउंट shall be entered except with the approval of the company by a resolution. ये बता रहे प्रोवाइडेड, इसका मतलब है कि अगर एक थ्रेशोल्ड दिए रूल 15 के अंदर, अगर वो लिमिट के एक्सीड हुआ तो तुमको नो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डन of the amount specified if it is exceeded except with the approval of the company by a ordinary resolution. तो ऊपर वाला बोर्ड, नीचे वाला लिमिट क्रॉस हुआ तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट ऑन द रेजोल्यूशन which may be entered into by the company if the person is a related person. तो अगर रिलेटेड पार्टी क्या वोटिंग कर सकती है? आंसर इज नो, बट उसके एक्सेप्शंस हैं. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट कंटेन्ड इन सब second proviso shall apply that a company in which 90% or more of the members are relatives or are related parties, then they can vote even when they are related, and even if the transactions are at arm's length price, then it is fine. arm's length price मतलब क्या? price as if you were unrelated. तो सोचो कि अगर मुकेश अंबानी का बेटा जियो का मोबाइल खरीद रहा है at the same price at which others would have bought, can it be said it's a related party transaction? No, because it is with a arm's length price, at the price that it would have been done with unrelated persons. फिर provided also that the requirement of passing a resolution shall not be applicable for transactions entered between holding company and its wholly owned subsidiaries whose accounts are consolidated with the company and placed before the shareholders at the general meeting. अगर लिमिट्स के ऊपर गया तो किसका कंसेंट चाहिए? शेयर होल्डर्स. बट मैं अगर बोलूंगा कि सारी ही शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास में है, तो डू यू रिक्वायर अप्रूवल नाउ? No, because one person only has all the shares, so if he consents, everything is done. So if a holding company and a wholly owned subsidiary is there, then you don't require approval in the subsidiary company because एक उसने पास किया तो sufficient हो जाता है. Now office of profit समझते क्या है? Now we had done this limits ऊपर, ये यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो भी ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ में कर रहे हो ये सारी चीज़ें, यू कैन नॉट डू एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ द बोर्ड. लिमिट के ऊपर गया तो रेजोल्यूशन. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बाकी के सब तो भाई वर्ड समझ में आ जाता है, अंडर राइटिंग के रख रहे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन व्हाट? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स अ पोजीशन in which you are deriving benefit. It's an office of the company from which you are deriving benefit. So let's take for example, we have एक company है. Let's take for example there is a company, उसका CEO is a MBA, he has done his CA, he has done his CS, he has done his CWA, and he has also done LLB. Any other degrees that you prefer? CFA and डॉक्टरेट. PhD. ठीक है, ये सब इसने किया है CEO ने. इसकी एज 300 years है. ओके, नाउ इसकी वाइफ, तुमको लग रहा है ही मस्ट बी मैरिड? नो. But after doing all this, then he gave his this. So then you think he must be married now? Yes. Yes. So once he came to know that he's done all these degrees and he's getting a package of 25 crores per month. अब इसकी chances है शादी हो जाए?
Definitely. Definitely. Okay. So he got married to a person. Okay, a girl. Okay. There's Rakhi Sawant. I'm not talking of that Rakhi Sawant. Okay. Now imagine Rakhi Sawant. She has studied till 5th, and 6th she has attempted 2 times. Now what happens? Realizing that this guy is the CEO of the company, he can easily place her and give her a job. आराम से अपना he can use his post to give her a job. Yes. सोचो जॉब दे दिया for rupees 50 lakhs a month, 50 लाख या you know 5 lakhs a month per month. Now, don't you think this is a related party transaction? Yes. 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 And he has used his post, okay, and he is deriving profit where a person is not that qualified and does not meet the normal requirements to get the pay, but somewhere now we've seen so many times politicians, they appoint their children into all with post and then they earn money. Now that happens. So this post that she will hold will be called as office of profit. तो office of profit मतलब क्या? A profit from a office from which you derive profit or money. Now इसके लिए भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी रिलेटेड पार्टी के साथ में जब तुम किसको जॉब देना चाहते हो रिलेटेड पार्टी को, तो इट विल बी कॉल्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अगर लिमिट के अंदर है तो किसका कंसेंट चाहिए? सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन. बट अगर लिमिट के ऊपर गया, ठीक है, इफ इट इज अबाउ द लिमिट देन यू रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. एंड लिमिट में क्या दिया है पगार में, ये खाली एक लिमिट तुमको जानना है, बाकी के सारे लिमिट्स नहीं भी जानोगे तो चलेगा. The limit that they have done, that if you exceed the limit, that is 2,50,000 rupees per month के ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सोचो आई एम अपॉइंटिंग हर फॉर 2,50,000 per month or more, so the 3 lakh का ट्रांजैक्शन कर दिया and I'm she getting a salary of 3 lakhs, then ordinary resolution needs to be passed. If I want to give her a job of 20,000, it is a office of profit, but do I require approval of shareholders? No. नो, खाली सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन लेके खत्म कर दो. बट अगर 20 लाख का जॉब देना है पर मंथ, तो बोलेंगे सिंस इट हैज एक्सीडेड दिस लिमिट एंड यू आर गिविंग अ जॉब टू अ रिलेटेड पार्टी, देन यू रिक्वायर कंसेंट. नाउ लेट्स सी, दिस इज गिवन. एवरी कॉन्ट्रैक्ट entered shall be referred to in the board report. Where any contract is entered by a director without obtaining consent of the board, and if it is not ratified by the board within 3 months from the date of which it was entered, it shall be voidable at the option of the board or the shareholders. समझते क्या सीन है? सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? तुम सोचो कि मैंने बताया नहीं कि मैंने ट्रांजैक्शन किया है. सोचो कि हम लोग ने बताया नहीं कि हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है. सो इफ अ ट्रांजैक्शन was entered, okay, without the disclosures, that we didn't know only that they were related and they never spoke up, so in such cases you think the transaction is void or voidable? देखो, अगर कोई ट्रांजैक्शन है, डायरेक्टर ने उसके भाई के साथ में किया और कंपनी को करवाया और हमको पता ही नहीं था कि ये लोग दोनों भाई है, so you think from company point of view the transaction should be made void or voidable? Voidable. At the देखो, amount of party. अगर void रखोगे ना तो मतलब नहीं है. what if company wants to ratify it? so if company wants, अगर enter कर दिया ये सब बिना disclosure का ये सब, तो then company within 3 months can approve the transaction कि अच्छा ठीक है, इसने झूठ कुछ बोला नहीं है, मे बी इसको स्ट्राइक नहीं हुआ होगा, कंपनी लॉ के प्रोविजंस पता नहीं होंगे, बट हमको जेन्युइन लग रहा है ट्रांजैक्शन, वी स्टिल वांट टू गो अहेड. सो दे कंपनी हैज एन ऑप्शन टू ईदर मेक इट वैलिड or to make it
invalid. Clear? So we'll start, just go through the module and finish it off. This is the section 2 subsection 76. What do you mean by related party? Then comes list of relatives. Who is a relative is given under section 2 subsection 77. Now this is important. Section 188 subsection 1 read with rule 15, that if you do a transaction of purchase of goods or service or property or leasing the property or appointing any agent or giving an office of profit or underwriting to any related party, then you require consent of the board. You are trying to have an arrangement with the related party. Next, एक disclosures देना पड़ेगा, and the director shall not be present at the meeting and vote. अगर लिमिट के ऊपर गया तो यहाँ पे ये वाले रूल 15 में लिमिट्स दिए हुए हैं. अब लिमिट्स में तुम पढ़ सकते हो क्या क्या लिमिट्स दिए. सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट जो अपने को याद रखना है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का. So if a monthly remuneration exceeds 2.5 lakhs per month, then you require ordinary resolution and approval. Next, related parties not to vote on the resolution. They are not allowed to vote. However, you will be exempt if 90% of the members are related. It's a private company or it's a government company. What do you mean by ordinary course of business? So this you can just read. Day-to-day businesses जो कर रहे हो. Arm's length price का मतलब क्या होता है? When you do transaction between related party के बीच में transaction ऐसा हो रहा है जैसे वो लोग unrelated होता है. So Mukesh Ambani's child buying at the same price at which Rita. So this is the definition of arm's length price. Then comes disclosures in the board report. It should be disclosed in form AOT, AOC2. Section 134 में board report होता है. Penalties for non-compliance. Then comes audit committee. Audit committee का तुम्हारा rule 6 से they can make omnibus approvals. They have to approve all audit committee transactions. जब वो लोग ऐसा blanket approval देंगे तो वो लोग specify करेंगे कौन सा transaction है, उसका value maximum क्या हो सकता है. They will review at such intervals that they feel fit. They will explain the repetitiveness, the justification of giving the omnibus approval. It will indicate every single thing, कौन सी party है, nature of transaction. The omnibus approval cannot exceed for more than 1 year also. Like they will every year they will have to give a new omnibus approval. So one blanket approval is applicable for maximum 1 year. Then comes SEBI listed companies के लिए दो regulation है 21ZB and 21ZC. Related party कौन है और related party transactions. Then provisions I told you, regulation 23 of LODR. Listed companies shall formulate a policy regarding related party transaction, and they will give clear thresholds approved by the board of directors, and it shall be reviewed by the board on this policy every once in 3 years. All related party transactions require approval of the audit committee. The audit committee may grant omnibus approvals, such provided where the need for related party cannot be foreseen. तो वो लोग एक and the details are not available. The audit committee may grant a blanket approval for such transactions subject to their valuing not exceeding 1 CR. This audit committee shall review at least on quarterly basis details of the related party. Such omnibus approval shall be valid for a period not exceeding 1 year and require fresh approvals every year. And that is it.